Hi students, welcome to Secondary Success. So today we are starting again with the general knowledge topics, and in this video we will be covering about the static GK portion of general knowledge. The current affairs portion and how to study current affairs as topic wise has already been uploaded on our channel. Further, the syllabus for general aptitude test has also been uploaded, so do check out the full syllabus. Now students, in this video we will be talking about history and particularly the Indus Valley civilization. Furthermore, we will be covering topics from political science, geography, science and computer for general knowledge and other miscellaneous topics. So please check out the full syllabus video so that you have a grasp of what are we going to study in the further next videos. So students, starting with the Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization, we will be dealing with the factual details that will be coming in your exam. So the very first thing, that who was the first person to use the term Indus Valley civilization? It was John Marshall. Further, the largest site of Indus Valley civilization was Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is also known as Mount of Death. Okay, because there were a lot of dead bodies found in Mohenjo-daro. Further, there is a very slight confusion जो आपको examiner create करेगा, that what is the largest site and what is the largest Indian site. So as you know that India has seen a partition where some of the sites were there in India and some of the sites went to Pakistan. सो जो साइट्स पाकिस्तान में है और जो साइट्स इंडिया में है उनमें डिफरेंस है. सो ओवरऑल देखा जाए तो लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो है जो पाकिस्तान में है, बट जो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया इज राखीगढ़ी, दैट इज इन इंडिया. ओके, फर्दर मूविंग ऑन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रफ और established रफ डेट है, दैट इज 300 BCE. दिस civilization flourished during the period of 2600 BC to 1900 BC, and further, this Indus Valley civilization came to a decline in the 1400 BC. You just need to remember the year. Now also, जो अगर हम बात करते हैं जो टेबल है या किस तरह से हम ईयर कैलकुलेट करते हैं, सो देर इज़ अ सिंपल थिंग, दैट इज़ यहाँ पे आपका आता है कॉमन एरा, यहाँ पे आता है आफ्टर क्राइस्ट और यहाँ पे आता है बिफोर क्राइस्ट. सो जो बिफोर क्राइस्ट है वो जो हमारी टेबल होती है, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वैसे कैलकुलेट होते हैं. तो जो 1 है वो सबसे बड़ा है एंड इससे इधर जाते जाएंगे तो यहाँ के जो नंबर है वो छोटे होते जाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल 100, सो 100 दैट इज़ लाइक 100 BC इज स्मॉलर देन 1 BC. दैट इज़ वाई यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर्स हैं वो ऊपर से नीचे छोटे होते जा रहे हैं. एंड 1400 जो BC है वो एक लेटर टाइम ऑफ पीरियड है. सो दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग. इफ़ यू नीड अ डीपर एक्सप्लेनेशन टू लेट मी नो इन द कमेंट्स. फर्दर हम बात करते हैं कि इस जो सिविलाइजेशन को है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. ओके, एंड हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा इज इन पंजाब, पाकिस्तान. दैट इज पाकिस्तान वाला पंजाब. Further, if we talk about what was the most important thing, so there was the first evidences of cotton found in the Indus Valley civilization. So we can also say that they did agriculture and instances of cotton were found in the Indus Valley civilization. Further, आपको इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल लोकेशन पता करना होगा. सो दीज आर द मेजर स्टेट्स वेयर इट इज़ लोकेटेड. यू जस्ट नीड टू रीड द नेम ऑफ द स्टेट्स. इट like starts from the Pakistan and then also covers areas of Afghanistan, then India, and then some parts of the southern India also. Okay, furthermore, you need to remember the northern, southern, western and easternmost important sites. What are the northernmost site? If say this is the whole area of the Indus Valley civilization, the northernmost site and then the southernmost site, then the easternmost site and the westernmost site. So these are the names of the site. Do read them and learn them. Now further, this is the most important part where the questions come from. So इसको आपको ध्यान से देखना है. In India there are some sites. So आपसे एक साइट का इम्पोर्टेंस पूछा जाता है कि एक जो पर्टिकुलर साइट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है. सो कालीबंगान इज अ साइट दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान. सो आपको ये में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द साइट दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान, और व्हाट कालीबंगान इज अ साइट एंड इट इज लोकेटेड वेयर. सो ये साइट इंपॉर्टेंट बन जाती है. एंड दीज साइट्स आर इंपॉर्टेंट वाई? बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला है जो इनकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं. सो कालीबंगान इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स प्लो फील्ड सर्फिस. व्हाट इज प्लो फील्ड सर्फिस? वहाँ पे एक ऐसा सर्फिस पाया गया जहाँ पे हल करा गया था या फिर खेती करी गई थी. सो दैट सर्फिस हैज़ बीन फाउंड. सो दिस गिव्स अस द सिग्निफिकेंस दैट कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था. फर्दर, लोथल में एक डॉकयार्ड पाया गया है. देन डोलावीरा में एक वाटर रिजर्वायर पाया गया है. सो दीज आर दी साइट्स ऑफ द राजस्थान. फर्दर, Lothal, Dolavira and these sites are of Gujarat. Okay,
देन रंगपुर एंड सुरकोथा, दीज ऑल्सो आर दी साइट्स ऑफ गुजरात. सो आपको ये साइट्स के नाम याद रखना है और उनका स्टेट याद रखना है कि कौन से स्टेट में पाए गए थे. तो लोथल, धोलावीरा एंड रंगपुर एंड सुरकोटा आर देयर इन गुजरात. एंड लोथल एंड धोलावीरा का क्या इंपॉर्टेंस है कि वहाँ पे एक डॉकयार्ड और वाटर रिजर्वर पाया गया था. वाटर रिजर्वर मतलब पानी सेव करने का बड़ा सा वाटर टैंक काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. द नेक्स्ट फर्दर मूविंग ऑन, बनावली जो हरियाणा में है, वहाँ पे एक मदर गॉडेस का आइडल पाया गया था. एंड रोपार जो पंजाब में है. सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट साइट्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट कि उन इंपॉर्टेंट साइट्स में क्या चीज़ मिली थी वो. Okay, further moving on, what are the important sites in Pakistan? So in Pakistan we have the most important site, that is the Harappa. Harappa is located on which river? On the banks of which river? That is Ravi river, because Indus Valley civilization, now Indus has many tributaries, तो उसकी एक tributary है रावी, जो जिस पे like Harappa जिस river के banks पर है उसे हम रावी river बोलते हैं. And this is the first site to be discovered. Furthermore, द मोहनजोदारो साइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेथ, ये सिंध रिवर के पास है. एंड इट हैज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस और द greatest buildings over there. So it is also the Great Bath, that is considered one of the most iconic buildings of the Harappan Valley civilization. Further, चन्होदारो जो सिंध एरिया में है ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे शेल ऑर्नामेंट्स एंड बीट मेकिंग के एविडेंसेस पाए गए हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दीज टू टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ से इंडस वैली से क्वेश्चन आते हैं. सो यू कैन लर्न दीज. फर्दर द एक्सकवेटर्स, सो जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी, तो एक्सकवेशन वॉज डन बाय जॉन मार्शल. यू कैन लर्न हिज फुल नेम बिकॉज एट टाइम्स आपको नेम्स में भी कंफ्यूज करा जा सकता है. फर्दर हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी वॉज डन अंडर द मार्शल एंड दयाराम सहनी, हु वॉज एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, एंड देयर आर फर्दर मोर नेम्स. देन ऑल्सो मोहनजोदारो की जो डिस्कवरी है, इट वॉज स्टार्टेड बाय R.D. बैनर्जी एंड विथ अदर further excavators. Okay, now other details. Now we are not going into the deep sophistication of the civilization, but हम उसका थोड़ा basic features पढ़ेंगे, ताकि अगर ये चीज़ें आपके MCQs में as a choose one or two, choose all ऐसे करके आता है तो आप easily कर पाओ. Now the Indus Valley civilization का important feature था कि वहाँ पे एक level of sophistication था. Now level of sophistication और advancement जो था इसमें वो ये था कि इस सिटी में, जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे सिटी प्लानिंग देखी गई थी. जो लेन्स बनी थी वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनी थी, जो और सिविलाइजेशन में नहीं देखी गई थी. जैसे कि जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहाँ पे ये सोफिस्टिकेशन नहीं देखा गया था. तो हम कह सकते हैं जो सिटी है वो प्लान करके फिर बनाई गई थी. फर्दर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखा गया था कि जो ड्रेन्स हैं वो एक प्रॉपर वे में ले करी गई हैं. पहले ड्रेन्स बनी थी और फिर हाउसेस बने थे. तो इस तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको एक प्लांट सिविलाइजेशन बोलते हैं. फर्दर जो ड्रेन्स है वो एक तरह से सीमेंटेड थी, इन द सेंस नॉट सीमेंटेड एग्जैक्टली, बट वो जो ड्रेन्स हैं वो इस वे में बनी हुई थी ताकि वो जो वाटर है उसको वाटर लॉगिंग और ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो. सो द ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी एक्सीलेंट एंड बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करा गया था. तो दिस वे दिस सिविलाइजेशन showed a level of advancement जो other civilizations में नहीं था. Further, this like most of the cities in this civilization had similar patterns, जहाँ पे एक upper town होता था और एक lower town होता था. Citadel and lower town. जो citadel होता था वो usually एक छोटा town होता था but वो higher level पे होता था, and जो lower town होता था वो area में बड़ा होता था but वो क्या कहते हैं लोअर लेवल ऑफ सब्जेक्ट पे होता था. फर्दर द मोस्ट ऑफ दी सिटीज़ हैड ग्रेट बाथ. नाउ ग्रेट बाथ शोड अ सिग्निफिकेंस कि वहाँ पे मे बी कुछ रिचुअल कल्चर या ऐसी चीज़ें हो सकती थी, बट ग्रेट बाथ वॉज देयर, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. फर्दर ड्रेनेज लाइन्स वर देयर, एक्सीलेंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वॉज देयर, एंड सील्स वर फाउंड. एंड इवन वेट्स ऑफ मेजरमेंट्स की किस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट्स 1 kg 2 kg जैसे हमारे टाइम पे होता है, वैसे उनके टाइम पे भी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेट्स मिले थे. ओके, सो दैट शोज दैट देयर वाज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो कॉमर्स. फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन दैट वाज कॉटन कल्टिवेशन, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा कॉटन कल्टिवेशन का भी सामान पाया गया है. फर्दर इसमें हम ये भी बोलते हैं कि देयर वर रिमेन्स ऑफ शीप, गोट्स एंड पिग्स फाउंड बाय वेरियस जूलॉजिस्ट, एंड ऑल्सो botanists found the remains of wheat, barley, cotton, these things. So it also tells that they had a very good kind of agriculture and also had domestication of animals. एंड उसके अलावा ट्रेड वॉज ऑल्सो कंडक्टेड बिकॉज उनके पास बहुत सारे सुमेरियन थिंग्स हैं, वो क्या कहते हैं, एंड ऑल्सो वन
ओमान का दे हैव ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल दैट वाज फाउंड. सो इस तरह से पता चलता है कि वो है वो अरेबियन पेनिनसुला या फिर ओमान से ट्रेड करते थे. एंड एट दैट टाइम द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन वॉज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर वर नोन बट आयरन वॉज नॉट नोन. सो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या पता था वो तो सही है, लेकिन क्या नहीं था वो आपको बताना है. सो कॉपर, ब्रोंज, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, इसके ऑर्नामेंट्स मिले हैं, लेकिन आयरन ऑर्नामेंट्स वर नॉट फाउंड. सो दस वी कैन से दैट आयरन वॉज नॉट नोन एट दैट पीरियड. ठीक है. फर्दर इस टाइम पे टेम्पल्स एंड प्लेसेस लाइक हैव बीन फाउंड, बट इसमें एज सच कोई डेटी या उसका जो मेंशन है वो नहीं है. बट देयर वाज अ पशुपति सील दैट वाज फाउंड. नाउ इस पशुपति सील के आसपास काफ़ी एनिमल्स बने थे. सो आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेटेड इट एज पशुपति सील, बट दे डू नॉट हैव एनी क्लूज कि वो लॉर्ड शिवा है या कोई अदर डेटी है. सो देर आर वेरी मेनी थ्योरीज, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि वहाँ पे एक पशुपति सील पाई गई थी. नाउ द करेक्ट फिगर की वो क्या है वो इंटरप्रेट नहीं करा गया है. सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉर्ड शिवा सील, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ एनिमल्स एंड सो ऑन. द अदर थिंग इज़ दैट वहाँ पे रेड पोइट्री का सिस्टम था जो वो बहुत डिफरेंट सिस्टम था. एंड ऑल्सो अ मेटल लाइक अ सब्सटेंस दैट वॉज यूज फॉर बीड मेकिंग एंड बैंगल्स वॉज ऑल्सो फाउंड दैट वॉज नोन एज फियांस. तो आपको ये पर्टिकुलर नेम वर्ड्स आप याद कर सकते हो. ऑल्सो देयर वॉज अ डांसिंग गर्ल दैट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो एंड ऑल्सो प्रीस्ट किंग वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो. सो इससे पता चलता है कि मे बी वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक पर्टिकुलर किंग या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का रूल था, या फिर वो डिफरेंट डायमेंशन में फैला हुआ था. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. देर आर डिफरेंट थ्योरीज कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. वो बहुत सारी थ्योरीज है. यू डू नॉट नीड टू गो इन टू दीज डिफरेंट थ्योरीज. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ऐसी फैक्चुअल चीज़ें मिली थी. सो ओनली फोकस ऑन दी फैक्ट्स, डू नॉट फोकस ऑन दी थ्योरीज that are like different theories. Further लोथल पे डॉकयार्ड मिला था, that is was also already mentioned. अगैन देर वॉज अ थिंग कि वो एक पर्टिकुलर बरियल सिस्टम फॉलो करते थे. मतलब वुडन कफन्स मिले थे और इवन क्या कहते हैं क्रीमेटेड कॉफिन्स भी मिले थे, जहाँ पे ऐसा लगता था कि क्या वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते हैं. देयर वर अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज और लॉट ऑफ स्केल्टन्स दैट वर फाउंड अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज बीड्स, ज्वेलरीज एंड ऑल्सो पॉट्स एंड अदर थिंग्स. सो इससे पता चलता था कि मे बी दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ. बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि किस तरह से उनका बरियल होता था. दे यूज टू बरी, दे डिड नॉट यूज टू बर्न बट दे यूज टू बरी. एंड लास्ट थिंग इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है दैट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड. नाउ अब जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं करा गया है. देयर आर मेनी थ्योरीज कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. सो यू डोंट नीड टू गो इन टू दी पॉसिबिलिटीज, यू जस्ट नीड टू रीड दी फैक्चुअल डिटेल्स एंड नॉट दी पॉसिबिलिटीज. नाउ एक और चीज़ आती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका कैसे एंड हुआ. सो नो वन नोज उसका एंड कैसे हुआ. सम से देयर वॉज एन आर्यन अटैक, सम से देयर वॉज ड्रॉथ, सम से देयर वॉज फ्लड, सम से देयर वॉज अर्थक्वेक, सम से देयर कैन बी ईदर रीजन ऑफ वॉर ऑल्सो. सो ये जो चीज़ें हैं ये अनसर्टेन है. अगर ये आता है तो अगर ये मतलब ऐसा 3-4 ऑप्शंस में आ सकता है, बट इट वुड नॉट कम एग्जैक्टली और प्रिसाइसली. सो यू कैन जस्ट नो दैट, बट आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड, बिकॉज वो रीजन ही अनसर्टेन है अपने आप में. सो डोंट गो इन टू द पॉसिबिलिटीज, गो इन टू द फैक्चुअल डिटेल्स when you are studying this topic. And further, in case of any queries, please let us know on our Telegram channel. And thank you for the video and having the video in a very good manner. Try to make notes of each and every topic and do revision, because revision is the most important thing. You can just have a look on all these topics. Everyone can tell you these topics again and again, but until and unless you do not consolidate and revise them, it is of no use. So all the best, and in case of any queries, please let us know. Thank you.